جامعہ کراچی میں خودکش دھماکے کے بعد آج سے تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ واقعے کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ صورتحال کیا ہے جانتے دنیا نیوز کے نمائندے شعیب بخاری سے۔ شعیب بتائے گا تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ آج بالکل جامعہ کراچی کا جو تدریسی عمل ہے وہ دھماکے کے بعد جو وہ بند ہو چکا تھا، جس کے بعد دوبارہ جو ہے 2 روز بعد جو ہے وہ تدریسی عمل کو باقاعدہ طور پر کھول دیا گیا ہے اور اساتذہ اور طلباء کو باقاعدہ مین گیٹ پر جو ہے وہ چیک بھی کیا جا رہا ہے۔ ان کا شناختی کارڈ، ان کا جو ہے وہ جو ہے جامعہ کا کارڈ اور دیگر چیزیں، ان کے بیگز وغیرہ بھی چیک کی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اندر داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر تحقیقات کی بات کی جائے تو تحقیقات کے لیے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ میں اسی مقام پر موجود ہوں جہاں پر دھماکہ ہوا تھا۔ ہماری تحقیقاتی اداروں سے بات ہوتی رہتی ہے۔ سی ٹی ڈی حکام نے جو ہے وہ یہاں جامعہ کے کچھ جو اساتذہ ہیں یا جو عملہ ہے اس سے جو نمبرز وغیرہ حاصل کیے ہیں، کانٹیکٹ نمبر اور دیگر اور چیزیں بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی اگر بات کی جائے تو اس یونیورسٹی میں مجموعی طور پر 55 سی سی ٹی وی فوٹیجز کیمرے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور کیمروں کی حالت ایسی نہیں کہ اس کو جو ہے وہ اس کی جیو فورینزک وغیرہ اس سے کروائی جا سکے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صرف فیس ٹو فیس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چیک کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اسٹاف، جب یہ جو چینی تھے باشندے جہاں رہتے تھے، جہاں اسٹاف ان کی اسٹاف کالونی تھی، وہاں پر جو ہے وہ ان کو 4 رینجرز کے اہلکار اور 4 جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ وہاں پر تعینات ہوتے تھے۔ دہشت گردوں نے خاص طور پر ان کو جو ہے وہ یہاں نشانہ بنایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سافٹ ٹارگیٹ تھا، یہاں پر اتنی زیادہ سیکیورٹی نہیں تھی، تاہم 1 سیکیورٹی یا 2 سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ ان کے گاڑی کے آگے اور پیچھے چلتے تھے، جبکہ ان کی جہاں رہائش گاہ تھی وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈز موجود رہتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں کی تو تقریباً یہاں پر ابھی تک وہ گاڑی موجود ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا تھا اور اس کی اگر بات کی جائے تو تفتیشی اداروں جو نے باقاعدہ طور پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور ایک جو رکشہ ڈرائیور تھا جس پر ایک خاتون سوار ہو کر آئی تھی جو یہ دہشت گرد تھی، وہ اس رکشہ ڈرائیور کو جو ہے وہ بے قصور قرار دے دیا گیا ہے اور چونکہ بھی جاری ہیں۔ بہت شکریہ شعیب، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری کے خلاف عدم اعتماد کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر چودھری پرویز الہی کریں گے۔ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ خفیہ رائے شماری سے ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور سے بھی۔ آپ کو بتا چلیں کہ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری کے خلاف عدم اعتماد کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر چودھری پرویز الہی کریں گے۔ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ خفیہ رائے شماری سے ہوگی۔ تو ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری کے خلاف عدم اعتماد کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے لیاقت انصاری سے۔ لیاقت بتائیے گا۔ آج بالکل پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج 11:30 بجے طلب کیا گیا ہے، جس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کریں گے۔ اس اجلاس کی جو ہے آج کا یک نکاتی ایجنڈا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی موشن ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ قائد اعظم نے جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی، جو آج ایجنڈے پر رکھ لی گئی ہے۔ آج کا اجلاس کافی ہنگامہ خیز ہونے کا امکان ہے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ اسمبلی میں بھی آج ہنگامہ رائی پھر 16 اپریل کی طرح ہو سکتی ہے۔ صبح سویرے جو ہے وہ سیکٹری کوارڈینیشن پنجاب اسمبلی رائے جو عنایت اللہ لق ہیں ان کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ اب جو ہے وہ سیکٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ان کو نظر بند کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور جو ہیں وہ اسمبلی پہنچے تو ہم نے ان سے یہ استفسار کیا تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں ابھی نظر بندی کا ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ ہماری سیکٹری اسمبلی محمد خان بھٹی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران موجود تھے اور اب ان کے جو ان کا احاطہ ہے اس کے باہر پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے موجود ہے۔ لگتا یہ ہے کہ انہیں جو لاہور ہائی کورٹ کا احاطہ ہے اسے نکلتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یوں دوسری طرف مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن سے 6 بسوں پر بیٹھ کر سوار ہو کر یہاں پر پنجاب اسمبلی پہنچیں گے۔ تو 186 ارکان جو ہیں وہ آج لازمی طور پر عدم اعتماد کی تحریک لانے والی تحریک انصاف اور مسلم لیگ کو ثابت کرنا ہوں گے۔ خفیہ رائے شماری ہوگی۔ 94 ممبرز کے ساتھ اس موشن پر ایوان میں جو ہے وہ بحث کرنے کی اجازت ملے گی اور اس کے بعد خفیہ رائے شماری میں تحریک انصاف اور کافلی کو 186 ارکان ثابت کرنا ہوں گے اس عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں۔ اگر یہ 186 تک نہیں جاتے تو پھر یہ موشن جو ہے وہ لاسٹ ہو جائے گی، یعنی ناکام ہو جائے گی عدم اعتماد کی تحریک۔ منحرف ارکان جو ہیں وہ تحریک انصاف کے، ان کے حوالے سے اطلاعات یہی ہیں کہ نعمان لنگڑیال کا کہنا ہے کہ ہم اس ووٹنگ میں جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے اور ہم ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹ
वोट नहीं देंगे। इस तरह मुस्लिम लीग नून और मुनहरफ रुकान जो है वो सरदार दोस्त मज़ारी को सपोर्ट करेंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि हर ऐसा इकदाम उठाया जाए जिससे डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाए। तो गालिब इम्कान यही लग रहा है कि बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी आज भी पंजाब असम्बली के हाथे में डिप्यूट कर दी गई है, जो किसी वक्त भी किसी तरह की भी हदायत पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो मुतहरिक होगी। तो अब हालात और जो सूरत हाल है उसमें तो लगता यही है कि फिर पंजाब असम्बली में आज हंगामा खेजी हो सकती है और हंगामा राय की वजह से इजलास मुलतवी भी हो सकता है। बहरहाल ये स्पीकर को फैसला करना होने के भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया लियाकत, आपने अपडेट किया। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनायतुल्लाह लक को थाना गढ़ी शाहू मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस की जानिब से सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनायतुल्लाह लक को थाना गढ़ी शाहू मुंतकिल कर दिया गया है। और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का भी आज हंगामा खेज इजलास होना है कुछ ही देर बाद, और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली को हिरासत में ले लिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के पेशावर में खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया। हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के पेशावर में खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया। हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के पेशावर में खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात का नोटिस। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इलेक्शन कमीशन मुखालिफ बयानात का नोटिस ले लिया है और इस सिलसिले में जो उन्होंने पेशावर में कन्वेंशन से खिताब किया था उसकी तमाम जो रिकॉर्डिंग है वो भी तलब कर ली गई है और कैमरा से भी इस सिलसिले में तमाम तर रिकॉर्ड मांग लिया गया है। उनके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो PTI के दीगर रहनुमा हैं उनको भी इस सिलसिले में उनकी जवाब तलबी का फैसला किया है, जिनमें सिंध असम्बली में कायदे इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयानात का जो रिकॉर्ड है वो भी तलब किया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं इनका जायजा लेने के बाद इस पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर मंदी। स्टॉक मार्केट में 700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी और 100 इंडेक्स 44,829 की सतह पर पहुंच गया। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइए कि इस मंदी की वजह। देखिए, इसकी चंद वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि टी बिल्स में जो एबनॉर्मल इंक्रीज देखा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इन्वेस्टर्स जो टी बिल्स के जो रेट की वजह से एक्सपेक्टेशंस इनकी होती है कि अगर इसके रेट में अगर इजाफा हो रहा है या कोई एबनॉर्मलिटी अगर नजर आ रही है तो इसका मतलब ये कि इंटरेस्ट रेट में बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर जो है सरमायाकारी समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो भी परचेजिंग करेंगे, फ्यूचर में बाइंग होगी तो इस पर जो है वो उनकी जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ ये खबर जो इंडस्ट्रीज के लिए भी होती है क्योंकि जो डेट रेशियो होता है किसी भी कंपनी का वो भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे जो है उस पर पड़ता है। साथ साथ अगर हम एक और चीज़ भी देखें कि रोल ओवर वीक है, महीने का लास्ट चल रहा है और उसके बाद ईद की तातीलात हैं, तो ये तमाम वजूहात है जिसकी वजह से हम देखते हैं सरमायाकार जो है वो अपने जो शेयर्स होते हैं उसको फरोख्त करके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मार्केट से पहले जो है वो निकल जाएं और अपनी पोजीशन को जो है दोबारा लेने के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए लेने के लिए जो है वो शेयर्स को फरोख्त भी कर रहे होते हैं, कुछ नई बाइंग भी नजर आ रही होती है। तो ये तमाम वजूहात है जिसकी वजह से हम आज देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कुछ डिक्लाइनिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर क्योंकि कुछ अच्छी खबरें भी जिसमें कि वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब है, इसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस की हैं कि $3 बिलियन से ज़ायद की अमाउंट जो है पाकिस्तान को मिल सकती है, जो कि हमारे रिजर्व के लिए बहुत एक बेहतर खबर होगी। IMF के साथ भी मुज़ाकरात हैं, तो नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट पर कुछ ट्रेंड बदलता हुआ नजर आए। लेकिन इस वीक के अंदर क्योंकि रोल ओवर वीक भी है जैसे कि आपको बताया, और साथ साथ जो है टी बिल्स में भी एबनॉर्मलिटी हमें देखने में आ रही है। ये दोनों रीजन है आज के मार्केट के डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर। जी तारिक, बहुत शुक्रिया।
मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी डीजल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिससे खुसूसी तौर पर गंदम के काश्तकारों को शदीद मसाइल का सामना है। फैसलाबाद से देखिए अब्दुल बासित की रिपोर्ट। डीजल की कीमतों में मुमकिना इजाफे के पेश नज़र मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी डीजल का मसनूई बहरान पैदा हो गया। गंदम की कटाई के सीज़न के दौरान काश्तकारों को डीजल मैसर न आने की वजह से गंदम की कटाई का मरहला मुतासर हो रहा है, जिससे काश्तकार शदीद मसाइल का शिकार हैं। फेरे ते फेरा मरवाने ने गवर्नमेंट डीजल लोगों को दे ही नहीं रही। अब फसलों तुहाडे कोल पे है, ट्रैक्टर बंद पे है, ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਲਤੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੇ उन्हें डीजल ले आना तो फिर चलना, बंद खड़े हैं। डीजल नहीं मिल रहा जी, डीजल की बहुत मुश्किल आई हुई है, जो है ना हमारा तो बहुत काम खराब हो गया डीजल की वजह से। शहरी कहते हैं कि सरमायाकारों ने मुनाफे के हसूल के लिए डीजल की मसनूई किल्लत पैदा कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद हुकाम सूरत हाल को कंट्रोल करने में गैर संजीदा दिखाई देते हैं। गंदम की कटाई के सीज़न के दौरान डीजल का मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया, जिससे न सिर्फ काश्तकार परेशानी का शिकार हैं, बल्कि गंदम की बर वक्त थ्रेशिंग ना होने से नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्तान में मौसम खुश्क और गर्म होने के बायस बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे घरेलू और कमर्शियल सारिफीन के मामलात ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर से। जी बिल्कुल, मुल्तान का मौसम आज भी खुश्क और गर्म है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 42 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जिसकी वजह से बिजली की जो कंजम्पशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। मैपको को 11 अजला के लिए इस वक्त 3200 मेगावाट जो है बिजली दरकार है, लेकिन 2600 मेगावाट जो है बिजली फ्राहम की जा रही है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का जो दौरानिया है मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस वक्त शहरी इलाकों में 4 घंटे तक की जो लोड शेडिंग की जा रही है, उसके साथ साथ देही इलाकों में ये दौरानिया जो है 6 घंटे तक पहुँच चुका है, जबकि मैपको की जानिब से 2 घंटे का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया, जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इस वक्त सार्फिन से बात करते हैं। जी, आए रोज़ बताते नहीं है कि लोड शेडिंग किस टाइम करनी है, किस टाइम नहीं करनी। बार बार ट्रिपिंग की वजह से हमारे घर का जो फ्रिज था वो जल गया है। तो हुकूमत से यही इल्तिजा है, खुदारा इस बिजली पे कंट्रोल करें, इसकी लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म की। जी बिल्कुल, बिजली की लोड शेडिंग के बायस जो है घरेलू और कमर्शियल सार्फिन जो है दोनों ही परेशान है। इस वक्त पावर वॉल्यूम जो इंडस्ट्री है वो भी बहरान का शिकार हो चुकी है। एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि कम से कम शेड्यूल दिया जाए और उसके बाद जो शेड्यूल दिया जाए उस पर अमल दरामद जो है उसको भी यकीनी बनाया जाए। जी, मौसम की खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर में मौसम खुश्क रहेगा। सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। सिंध में दादू, नवाबशाह, मिट्टी, सक्खर और दीगर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। बलोचिस्तान में सिब्बी, नौकंडी और तुर्बत में भी मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को है। आगे बढ़ेंगे, हम खबर आप तक पहुंचाएं। वफाकी शरई अदालत में सूद के खिलाफ केस। वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया। केस में अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फ्रीकैन की राय ली गई। वफाकी शरई अदालत इस्लामिक बैंकिंग का डेटा अदालत में पेश किया गया। फैसले में यह कहा गया कि सूद से पाक बैंकारी दुनिया भर में मुमकिन है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सूद से पाक बैंकिंग के मनफी असरात से मुत्तफिक नहीं। मौशी निज़ाम से सूद का खात्मा शरई और कानूनी जिम्मेदारी है, ये फैसला सुनाया गया है। आपको बताते चलें कि वफाकी शरई अदालत में सूद के खिलाफ केस। वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया। केस में अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन के राय ली गई और वफाकी शरई अदालत इस्लामी बैंकिंग का डेटा अदालत में पेश किया गया। ये फैसले में कहा गया और सूद से पाक बैंकारी दुनिया भर में मुमकिन है। और आपको बताते चलें कि फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन की राय ली गई। वफाकी शरई अदालत इस्लामी बैंकिंग का डेटा अदालत में पेश किया गया। सूद से पाक बैंकारी दुनिया भर में मुमकिन है। फैसला वफाकी हुकूमत की जानिब से सूद से पाक बैंकिंग के मनफी असरात से मुत्तफिक नहीं। मुआशी निज़ाम से सूद का खात्मा शरई और कानूनी जिम्मेदारी है, ये भी फैसले में कहा गया है। वफाकी शरई अदालत में सूद के खिलाफ केस और वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा इस फैसले के हवाले से। देखिए, फेडरल शरीयत कोर्ट में ये फैसला इस वक्त सुनाया जा रहा है और 19 साल के बाद सूद के खिलाफ दरख्वास्तों पर यह फैसला सुनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2002 में मुकदमा
शरीयत कोर्ट को भिजवाया गया था और इस वक्त फैसला जस्टिस सैयद महमूद अनवर पढ़कर सुना रहे हैं। और अभी तक जो फैसला सुनाया गया है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि इस्लामी बैंकिंग का डाटा अदालत में पेश किया गया और सूद से पाक बैंकारी दुनिया भर में मुमकिन है। इस फैसले में ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सूद से पाक बैंकिंग के मनफी असरात से मुत्तफिक नहीं है। मुआशी निज़ाम से सूद का खात्मा शरई और कानूनी जिम्मेदारी है। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि मुआशी निज़ाम महज चंद अफराद के हाथों में नहीं होना चाहिए और ये निज़ाम सूद से पाक होना चाहिए। हर रकम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, आपने अपडेट किया। और आपको बताएंगे मदीना मुनव्वरा में बारान रहमत ने मौसम खुशगवार बना दिया। बारिश के बाद मस्जिद नबवी के हुस्न को 4 चांद लग गए। मदीना मुनव्वरा में काली घटाएं खूब जमकर बरसी। बारिश ने शहर नबी की रौनकें निखार दी। भीगा मौसम भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में रुकावट न बन सका। लोगों की बड़ी तादाद मस्जिद नबवी पहुंची, नवाफिल अदा किए और महबूब हुदा के रोज़े मुबारक पर हाजिरी दी। इस मौके पर खुद्दाम मस्जिद की सफाई सुथराई में मसरूफ रहे। अब यह हम खबर आप तक पहुंचाएं। पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। अब इजलास 16 मई को बुलाया गया है। आज पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया था और इजलास का यकनिकाती एजेंडा था डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होना थी। और अभी यह खबर सामने आई है कि पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। अब इजलास 16 मई को होगा। जी बिल्कुल, आपको बता चलें इजलास मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास 16 मई तक होगा और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होना थी, रायशुमारी खुफिया होनी थी और नून लीग का दोस्त मज़ारी के साथ खड़े होने का ये फैसला था। जबकि अब ये इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। हम खबर आपको अपडेट करते चले। पंजाब असम्बली का इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने इजलास की सदारत करनी थी और अब ये इजलास जो है 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा क्या वजूहात हैं इजलास मुलतवी कर दिया गया? जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का ये बड़ा फैसला सामने है। आज जो असेंबली स्टाफ की गिरफ्तारियों की इतलात आई और उसमें सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन अनायतुल्लाह लक को हिरासत में लेकर थाने भी मुंतकिल कर दिया गया। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को जो है नजरबंद करके गिरफ्तार करने की इतलात थी। तो इसके बाद जो पंजाब असम्बली में बड़ी तादाद में पुलिस है तैनात किए गए। इसके बाद जो है स्पीकर पंजाब ने ये फैसला लिया कि आज जो 28 अप्रैल को 11:30 बजे इजलास तलब किया गया था उसको बगैर कार्रवाई के अब 16 मई की तक मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसके तहत अब पंजाब असम्बली की आइंदा नशिस्त जो है वो 16 मई को होगी। तो यूं जो आज हंगामा खेज इजलास की इतलात की पुलिस की हजारों जवान जो है असेंबली के अंदर और बाहर तैनात किए गए थे। सेक्रेटरी असेंबली को नजरबंद किए जाने की इतलात थी और फिर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन को आज सुबह हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया था। ऐसे में स्पीकर का मौक़िफ़ है कि पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई चलाना मुमकिन नहीं। जब सेक्रेटरी असेंबली को गिरफ्तार किया जा रहा हो, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन को गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर ऐवान की कार्रवाई कौन जो है वो असेंबली का स्टाफ चलाएगा। ऐसे में ये इजलास चलाना नामुमकिन है जिसके पेश नजर अब 16 मई तक पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। जी 16 मई तक इजलास मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।